اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، لا اکراہ فی الدین، یہ ایک مشہور لفظ ہے، مشہور جملہ ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت توجہ سے سمجھ لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ کلام جہاد اور انفاق کے حوالے سے چل رہا ہے۔ جہاد کا حکم دیا، انفاق کا حکم دیا، اس کے بعد بنی اسرائیل کے خاص دور کا حوالہ دیا کہ جس میں ان پر جہاد فرض کیا گیا، اس میں انہیں کمزوریاں دکھائیں، اللہ نے پھر ان کی آزمائش کی۔ آزمائش میں تھوڑے لوگ پورا اترے، لیکن وہی لوگ اپنے اخلاص کی وجہ سے بڑی جماعت پر، بڑی فوج پر غالب آئے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں مضمر ہیں جس کا ذکر مقدور بھر میں نے آپ سے کیا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد پروردگار نے درمیان میں دو آیتیں جملہ معترضہ کے طور پر لائی، اور ان کی میں نے وضاحت کی کہ یہ جملہ معترضہ کیوں آئے ہیں اور اس کا حقیقی مفہوم کیا۔ پھر پروردگار نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے بھی، مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اسی صف کے آخری شخص ہیں جو اللہ نے رسولوں کی صف کھڑی کی تھی، اور جن کا کام یہ تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے، انسانوں کی اصلاح کرے۔ تو سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر واقعی رسول ایک بڑی تعداد میں آ چکے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے، لیکن پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول آتے رہے، کتابیں اترتی رہی، لیکن لوگوں کے اختلافات، جبکہ وہ آئے اس لیے تھے کہ ان اختلافات کو ختم کریں، لیکن ان کے اختلافات کبھی ختم نہ ہوئے۔ رسول ان کو ہدایت دے کے چلے گئے، قرآن ان کے کتابیں ان کے حوالے کر کے چلے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن لوگوں کا لڑنا جھگڑنا، ان کے اختلافات اور یہ تقسیم کہ یہ کافر ہے، یہ مسلم ہے، یہ فاسق ہے، یہ منافق ہے، یہ تقسیم تو اپنی جگہ قائم رہی۔ تو پھر ان رسولوں کے آنے کا فائدہ کیا؟ چنانچہ وہاں اس کا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد انفاق کے حوالے سے ایک آیت کریمہ میں حکم دینے کے بعد اللہ نے اس بنیاد کو مہیا کیا ہے، بنیاد بتائی گئی ہے کہ جو تمہارا دین ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اگر اس بنیاد پر دنیا قائم رہے، اور یہ بنیاد ہے جو ہر دین میں، ہر مذہب میں نازل کی گئی ہے، اس بنیاد سے لوگ ہٹتے ہیں تو ان میں اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ کتنے غلط تصورات ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پہ بنا رکھے ہیں، اسی پر ان کے اپنے دین کی بنیاد ہے۔ چنانچہ پوری سورہ آیت الکرسی میں، سورہ نہیں بلکہ آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان بنیادی تصورات کی اصلاح فرمائی گئی ہے، اور جو صحیح تصور اللہ کے بارے میں ہمارا ہونا چاہیے، یعنی جو صحیح توحید ہونی چاہیے، اور وہی ذرا پورے دین کی بنیاد ہے، اس کو بلا کم و کاس نہایت خوبی کے ساتھ، نہایت فصاحت بلاغت سے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو بات شروع کر کے کسی حد تک اس کا جواب دے دیا گیا تھا، لیکن اسی کو دوبارہ دیا گیا ہے مزید وضاحت کے لیے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ دنیا کے ہمیشہ رسول اور نبی تو آتے رہے انسانوں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی رسول کے آنے کے بعد دنیا میں صرف مسلمان ہوتے، مومن ہوتے، کافر ختم ہو جاتے۔ لیکن یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کافر بھی ہیں، دنیا میں مسلمان بھی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے بعد بھی کفر ختم تو نہیں ہوا، نفاق ختم نہیں ہوا، کہ دین کے خلاف کے مخالف جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر اپنی جگہ قائم رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی تعداد کو ہدایت سے نوازا، اور اللہ نے امت مسلمہ کو اٹھایا جنہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب اس وقت کی سرزمین پر برپا کیا، اور آج ظاہر ہے کہ 7 ارب کی تعداد میں انہی کافروں کے نتیجے میں آج مسلمان۔ لیکن یہ نہیں ہو سکا کہ تمام کافر مسلمان ہو جائے، یہ ہے اصل سوال۔ اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین،
और ये भी बात है जो ऊपर फरमाई, वलौ शाअ अल्लाहु मख्ततर अल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात। ये बात क्या है? बात ये है कि तुम ये समझते हो कि शायद रसूल इसलिए दुनिया में आते हैं कि वो किसी काफिर को काफिर न रहने दें और सारी दुनिया को मुसलमान कर दें। ये तो इसी सूरत में मुमकिन है ना कि अल्लाह ताला रसूलों के साथ एक ताकत भी नाजिल करे, बल्कि फरिश्तों को उनके साथ लगा दे और फरिश्ते जबरदस्ती हर आदमी का गला दबोच के ये कहें कि इस्लाम कबूल करो वरना हम तुम्हें मार डालें। उसका नतीजा ये होगा कि जबरदस्ती जब उनको इस्लाम दिया जाएगा सारे लोग मुसलमान हो जाए। और या फिर है कि अल्लाह फितरी तौर पर जबर करे लोगों पर, और फितरी तौर पर इंसान को पैदा ही इस तरह करे, उसका दिल का रुख ही इस तरह का बनाए और उसके दिमाग की सोच ही इस तरह की बनाई जाए कि आदमी जब भी सोचे इस्लाम के हवाले से और इस्लाम के मुवाफिक सोचे, उसके खिलाफ कभी ना सोचे। तो कुफर की सोच दुनिया से उठा दी जाए तो उसका नतीजा फिर क्या होगा कि जबरदस्ती तमाम लोग मुसलमान और मोमिन हो जाएंगे। कहा ये जो फितरी जबर है ना, इसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। अगर फितरी तौर पर जबरदस्ती हर आदमी को मुसलमान बना दिया जाए और नेक बना दिया जाए, फिर सवाल यह है कि इंसान का इम्तिहान किस बात में? इम्तिहान तो इसी बात में है कि उसके सामने खैर भी वाज़ेह किया जाए, शर उसके बाद खुद बहुत वाज़ेह हो जाएगा, सही रास्ता उसके सामने खोल दिया जाए, जो कुछ अल्लाह चाहता है उसकी रजा के मुताबिक एक एक बात की तफसील बता दी जाए, फिर उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए कि तुम चाहे इसे कबूल करो चाहे इसे रद्द कर दो। अगर कबूल कर लोगे तो जजा मिलेगी और अगर इसको रद्द कर दोगे तो क़यामत के दिन सजा पाओगे, और अगर इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम उसको रद्द कर देगी तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह का अजाब दुनिया ही में आ जाए, जैसे कौम आद पे आया, कौम समूद पे आया, कौम लूत पे आया। तो अल्लाह ताला दुनिया में उस वक्त अजाब नाज़िल फरमाते हैं जब कोई रसूल आता है और रसूल के तमाम काबिशों के बावजूद चंद आदमियों के सवा इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम उसकी बात को मानने से रद्द कर देती है, हत्ता कि उसके कत्ल के दरपे हो जाती है और उसे जान बचाने के लिए हिजरत करना पड़ती है, तो तब अल्लाह का फैसला दुनिया ही में हो जाया करता है कि उस कौम को मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर कौम का एक बड़ा हिस्सा, काबिल जिक्र हिस्सा मुसलमान हो जाता है, फिर बेशक बाकी लोग रसूल को हिजरत करने पर मजबूर भी कर दे तो अल्लाह ताला फौरी तौर पर उन पर अजाब नाज़िल नहीं करता, उनको मोहलत देता। ये अब हम 2 हफ्तों के बाद करने वाले हैं प्रोग्राम मेराज के हवाले से, तो उसमें मैं बताऊंगा कि मेराज से हुजूर ने वापसी पर लोगों को जो पैगाम दिया था सूरह बनी इसराइल की शक्ल में, उसमें बताया गया था कि वइन कादू लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्ज़ लियुखरिजूका मिनहा व इज़ा ला यलबसूना खिलाफका इल्ला कलीला। क्या है कुरैश मक्का, अगर तुमने तकलीफों के जरिए, मुखालफतों के जरिए तंग करके हमारे रसूल को यहां से निकलने पर मजबूर कर दिया तो याद रखो तुम भी यहां पर ज्यादा देर नहीं रह सकोगे। अल्लाह ताला तुम्हें ज्यादा देर मोहलत नहीं दे। चुनांचे उसी का नतीजा है कि अल्लाह ने 8 साल कौमों की तारीख में कुछ भी नहीं होता, 1 साल में तो उनकी पहली जमात को खत्म कर, पहली सब को खत्म कर दिया गया। यानी उनके बड़े बड़े सरदार जिनकी तादाद ज्यादा 70 हो सकती थी, वो सारे जंगे बदर में मार दिए गए और हुजूर ने फरमाया ये अजाब की पहली किस्त है। अगर इसके बाद उनका धीरे धीरे इस्लाम का कबूल करना खत्म हो जाता और उनके नौजवान अंदर ही अंदर इस्लाम कबूल न करते रहते तो यकीनन वो अजाब का शिकार हो जाते। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह ने फैसला कर दिया कि चूंकि तुम्हारा ईमान लाने का सिलसिला रुका नहीं, तुम उस आजाब से तो बच गए, जब पहली आजाब की किस्त तुम पर आई है जिस पर तुम्हारी पहली सब लपेट दी गई। अब ज़रा दूसरी सब के लोग तुम्हारी क़यादत कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसको भी खत्म कर रहे हैं कि या इस्लाम ले आओगे या कत्ल कर दिए जाओगे। देखो इस बात को नोट करो, आप पढ़े लिखे लोग हैं कि इस्लाम का असलन ये कानून नहीं है कि जब वो किसी इलाके को फतह करता है तो याद रखो वहां वो ये कभी नहीं कहता कि या इस्लाम कबूल करें या तुम कत्ल कर दिए जाओगे, बल्कि उन्हें ये कहता है कि या तो मुआहिदा हो जाए तो जो मुआहिदा में तय हो जाए, और या फिर उनको वहां के रहने वाले गैर मुस्लिमों को जिम्मी बना दिया जाता है और हुकूमत इस्लाम की कायम हो जाती है। तो इराक में, ईरान में, शाम में, जहां जहां भी इस्लाम गया है तमाम ममालिक में अल्लाह का यही कानून नाफिज हुआ कि गैर मुस्लिमों को बिल्कुल मजबूर नहीं किया गया, उनको जिम्मी बनाया गया,
यानी उनकी हिफाजत इस मुसलमानों ने अपने जिम्मे ले ली, लेकिन हुकूमत मुसलमानों के हवाले हो। लेकिन देखो सरजमीन अरब में यह कानून नहीं बनता गया, वहां साफ फरमा दिया गया फतेह मक्का के बाद और खासतौर 9 हिजरी के बाद जबकि सूरह तौबा नाज़िल हुई है, फरमाया कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, मुशरिक पलीद हैं, आज के बाद ये मस्जिद हराम के करीब भी ना फटके। और फरमाया तुम्हें 6 महीने की मोहलत है। उसके बाद मुसलमानों को हुक्म दे दिया गया कि इसके बाद जहां भी इनको पाओ इनको कत्ल कर दो। ये वजह क्या थी कि हुजूर बराह रास्त इनकी तरफ आए थे। अल्लाह का दूसरा कानून इनके लिए था कि अगर कबूल कर लोगे तो बच जाओगे, और अगर कबूल नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा। चुनांचे जंगे बदर में अल्लाह का पहला अजाब आया और दूसरे अजाब के बारे में फरमाया कि अब भी मौका है, इस्लाम कबूल कर लो, वरना तुम में जो लोग इस्लाम कबूल करने से अब रह जाएंगे, अल्लाह की तलवार हरकत में आएगी, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे ये अजाब था जो हर रसूल की जिंदगी में उसके हिजरत कर जाने के बाद आया करता। कौम आद को देख लीजिए, कौम समूद को देख लीजिए, कौम लूत को देख लीजिए, हज़रत हूद को निकलने पर हुक्म दिया गया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को निकलने का हुक्म दिया गया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को निकलने का हुक्म दिया गया। किसी को 3 रातों की मोहलत दी गई, किसी को 1 रात की मोहलत नहीं दी गई। हज़रत लूत को कहा कि तुम यहां से निकल जाओ जल्दी और पीछे सर फेर के भी ना देखना, और कहा अलैसा सुबह बेकरीब, सुबह तो ज्यादा दूर नहीं है, बस सुबह तक की मोहलत है, उसके बाद हम इस धरती को उलट डालेंगे। चुनांचे जैसे वो धरती से निकल गए, मालूम होता है कि नबी असल में यूं समझिए नौ इंसानी एक जिस्म की मानिंद है और अल्लाह के रसूल उनकी रूह की मानिंद होता है। जैसे जिस्म से रूह निकल जाए ना तो हम जाके उसको कब्र में फेंकाते। उम्मतें जब नबी को दुत्कार देती हैं, रसूल की बात मानने से इनकार कर देती हैं, तो जब अल्लाह उस रूह को निकाल लेता है वहां से, यानी हिजरत का हुक्म दे देता है, उसके बाद उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाता। चुनांचे कौम लूत की धरती उलट दी गई और फिर उन पर पत्थर बरसाए गए, और आज तक वो पूरी धरती डेड सी के नीचे आराम कर रही है। क़यामत के दिन उठेगी तो आप भी देख लेंगे। तो कहना यह है कि ये कहा जा रहा है कि अल्लाह का कानून ये है कि वो जबरदस्ती किसी को इस्लाम नहीं देता, वो फितरी जबर किसी पर नहीं करता, ना वो पैदाशी तौर पे करता है ना उसके बाद। उसका काम सिर्फ ये है कि अपने रसूल भेजे, अपनी किताबें उतारे, उन पर इत्माम हुज्जत कर दे, समझाने बुझाने में कोई कसर न छोड़े। देखना उस्ताद एक खास पीरियड तक पढ़ाते हैं, इसके बाद एक वक्त आता है कि क्लास को फ्री कर दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है कि जो काम अदारे का था उसने कर दिया, असाज़ा मुकर्रर किए, तुम्हारी टेक्स्ट बुक पढ़ाई गई, अब उसके बाद तैयारी करनी है इम्तिहान के लिए, वो तुम पर दारो मदार है, करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अल्लाह के रसूल जहां भी आता है वो कहता देखो मेरा काम क्या है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मेरा काम सिर्फ पहुंचाना है जो मुझे अल्लाह ने दिया। तुम्हें पकड़ के मुसलमान नहीं बना। लेकिन हर दौर के काफिरों ने हमेशा इसको दलील के तौर पर इस्तेमाल किया। काफिर ये कहते थे कि अगर हम वाकईतन गुमराह हैं तो अल्लाह ताला हमें जबरदस्ती राह सवाब पे क्यों नहीं डाल देता। लौ शाह अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना, कहा हम जो शिरक करते हैं, तुम जो कहते हो हम मुशरिक हैं, कहा अगर अल्लाह को ये शिरक मंजूर ना होता तो क्या वो हमें जबरदस्ती शिरक से रोक नहीं सकता था, हमें भी और हमारे आबा अजदाद को भी। वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै, जो हमने अपने तौर पर चीजें हराम कर रखी हैं और तुम कहते हो कि अल्लाह ने उनको हराम नहीं किया, कहा अगर ये अपने तौर पर हमने हुदूद से तजावुज किया है तो अल्लाह ने हमें जबरदस्ती रोक क्यों नहीं दिए। अल्लाह फरमाता कज़ालिका फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यही वो एतराज है जो पहले लोग भी उठाते रहे। उसके बाद सिर्फ एक जुमले में, निहायत फसी किताब है ये, एक जुमले में समेट कर रख दिया पूरा जवाब। का फ़हल अला रुसूल इल्लल बलागुल मुबीन, लोगों ये बताओ क्या रसूलों पर साफ साफ पहुंचा देने के अलावा भी कोई जिम्मेदारी है? ये है इसका जवाब। कहा हमारे रसूलों पर जो हमने रसूल भेजे और उन्होंने खून के खून पी पी कर तुम पर अपनी सारी सलाहियतें सर्व कर डाली, तुमने उनको पत्थर मारे, उन्हें दुआओं से नवाजा, तुम दरवाजे बंद करते रहो, हर दरवाजे पर दस्तक देते रहे, तुमने कान बंद किए, दिल बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली, लेकिन वो पलट कर तुम्हारा दामन खींच कर तुम्हें समझाते हैं।
पूरी जिंदगी इसी में उन्होंने खपा दी। कहा इसके सिवा और पैगंबर क्या कर सकता था? कफ़हल अला रुसुल इल्लल बलागुल मुबीन, क्या रसूल का काम इसके अलावा भी कुछ है बलागे मुबीन के अलावा? तो बलागे मुबीन में तो कोई कमी नहीं आई ना, साफ साफ समझाने की हद तक तो कोई कमी नहीं रही। तो कहा हमारा काम यह है कि हम समझाएं बुझाएं, अपना दीन पैगंबरों के जरिए पहुंचाएं, किताबें उतारें, उस पर अकली दलाइल कायम करें, फितरी दलाइल कायम करें, वाकया से समझाएं, जो मुमकिन तरीका हो सकता है एक एक बात को वाज़ेह कर दे। उसके बाद तुम पर तुम्हारी मर्जी पर यह बात छोड़ दे कि चाहो कबूल करो चाहे इसे रद्द करो।